Today we are going to learn Standard 4th. Our subject is English and our topic is from your English textbook My English Book 4 to the market. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let us start with the topic today, to the market. Okay. Now you have to listen, repeat and read aloud with me the poem. Let us start with the poem. Here is the picture of some apples. Now let us start with the poem. I went to the market. Do you know what I bought? I went to the market. मैं market गया. Do you know? क्या आपको पता है? What I bought? आप जानते हो मैंने क्या खरीदा? तो यहाँ पे पिक्चर किसकी है? Yes, some red shiny apples. That's what I got. I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples. That's what I got. Now what you have to do students, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी और उनके नाम आएंगे. तो आपको यहाँ पे जैसे हमने some red shiny apples लिखा है तो आपको उसके आगे उन नामों को ऐड करते जाना है और अपनी पोयम को बढ़ाते जाना है. चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं. Yes, here is the picture of a loaf of bread. तो हम इसको पोयम में कैसे ऐड करेंगे? I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread. That's what I got. Okay? Now second one. This is the pack of a color pencil. तो इसको कैसे करोगे आप? I went to the market. Do you know what I bought? पहले हमने क्या खरीदा? Some red shiny apples. After that, a big loaf of bread. फिर हमने उसके बाद क्या खरीदा? A pack of color pencils. That's what I got. Understood student? आपको क्या करना है? यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनके जो नाम है आपको ऐड करते हुए जाना है. ओके, चलिए एक और देखते हैं आगे. Yes, here is the picture of a sack of a gram flour. अब इसको पोयम में आप कैसे ऐड करोगे? I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils, a sack of gram flour. That's what I got. Okay, so next one. Yes, here is the picture of a pack of liquid soap. अब इसको इसमें कैसे ऐड करोगे? I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils, a sack of gram flour, a pack of liquid soap. That's what I got. I hope student आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. चलिए now come to the next slide. In this next slide यहाँ पर भी आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसके नेम्स आपको ऐड करने हैं पोयम में. The first picture is, yes, these are some juicy ripe mangoes. Thereafter, a pair of bangles. Thereafter, a big jar of honey. Thereafter, a pair of big bananas. And last one, a string of white flowers. Now what you have to do? हमने जो इसके पहले पोयम कंप्लीट की थी, I went to the market. Do you know what I bought? उसके बाद ब्लैंक्स में हमने क्या क्या किया था? Red shiny apples, some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils, a sack of gram flour,
अ पैक ऑफ लिक्विड सोप। उसके बाद आप लिखोगे सम जूसी राइप मैंगोज, दैट्स व्हाट आई गॉट। फिर सम जूसी राइप मैंगोज के बाद में आप उसको ऐड करोगे अ पेयर ऑफ बैंगल्स। फिर इसके बाद में ऐड करोगे अ बिग जार ऑफ हनी, अ पेयर ऑफ बिग बनानास, अ स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर्स। तो इस तरह से आपकी पूरी एक पोयम कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। तो यहाँ पर ये पोयम कंप्लीट होके आपके सामने आई है। Just read this poem. I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils, a sack of gram flour, a pack of liquid soap, some juicy ripe mangoes, a pair of bangles, a big jar of honey, a pair of big bananas, a string of white flowers. That's what I got. तो ये हमने पोयम कंप्लीट कर ली। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपके लिए दी गई है ना। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें आपको पैराग्राफ को रीड करना है, और रीड करते हुए जब आपको पिक्चर्स आएगी तो आपको उनके नाम रीड करना है, बताना है, और इस तरह इस पैराग्राफ को कंप्लीट रीड करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनो's mother told her to go to the market. I need half a kilo each of. Now what is the picture of? Yes, these are potatoes. So what will we say? I need half a kilo each of potatoes and yes, tomatoes, 3 lemons, a piece of ginger and some green chilies. Take this bag, 100 rupee note. Be careful and come back before 5. Munu brought the potatoes, the tomatoes, the 4 lemons and some green chilies. I did not get any. Now this is the picture of ginger, adrak. Munu said, never mind, said her mother. तो थी ना स्टूडेंट्स एकदम इंटरेस्टिंग पैराग्राफ रीडिंग। मजा आया आपको पढ़ने के लिए? जी हाँ। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Here is some another activities is given in your textbook. इसमें 4 टेबल्स हैं जिसमें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। आपको हर एक टेबल में से एक वर्ड चूज करना है और उसको मिलाते हुए एक जो है पूरा सेंटेंस तैयार करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए यानी 1, 2, 5। अब यहाँ पे बंचेस जो होते हैं ना, जब हम किसी चीज को गैदर्ड करते, जमा करते, तो उनके बंचेस बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं। तो किसको क्या कहते हैं अब वो हम देखते हैं। पैकेट, बंच, सैक्स, सैक्स यानी बोरियां, किलोग्राम्स, लीटर्स, मीटर्स एंड लंप। अब पैकेट क्या होता है? जैसे पेंसिल्स के पैकेट्स होते हैं। बंच जैसे फ्लावर्स के बंच होते हैं, फ्लावर्स के, ग्रेप्स के बंच होते हैं, उनके पैकेट्स नहीं होते हैं। सैक्स यानी बोरियां, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर, इनके सैक्स होती हैं, बोरियां होती है। किलोग्राम्स, हम जितने भी हमारे ग्रेन्स है, व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस, इनको हम किलोग्राम्स में नापते हैं। लीटर्स, जितने भी लिक्विड है जैसे कि तेल है, दूध है, हम इनको लीटर्स में नापते हैं। मीटर्स,
जितनी भी क्लोथ्स है, कपड़े, रिबन्स है, हम इनको मीटर्स में नापते हैं। लंप यानी कि किसी भी चीज का ढेर, जैसे कि आपने बटर खाया होगा, मक्खन, उसके पूरा एक लंप होता है, पूरा एक ढेर होता है, उसे कहते हैं लंप ऑफ। उसके बाद ये लास्ट वाले टेबल में दिया हुआ है कैंडल्स यानी मोमबत्तियां, बुक्स, ग्रेप्स, पेंसिल्स, ऑयल, मिल्क, sugar, salt, flowers, butter, flour यानी आटा, क्लोथ यानी कपड़ा, रिबन और राइस यानी चावल। तो what is this activity? You have to take one word from each table and make a meaningful sentence. हर टेबल में से एक वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है और इस तरह से एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। ये टेबल आपको दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। अ पैकेट ऑफ कैंडल्स। फर्स्ट टेबल से हमने लिया ए। From the second table we took packet, then the third of, और यहां से हमने लिया candles. A packet of candles. अब पैकेट और किसके होते हैं? पेंसिल्स का होता है। A packet of pencils, है ना। हमने यहाँ पे देखिए दो तो आपको बना के बता दिए सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, अ बंच ऑफ। बंच किस किस का होता है? बुक्स का होता है, ग्रेप्स का होता है, फ्लावर्स का होता है। वी टुक ए फ्रॉम हियर, बंच फ्रॉम द सेकेंड टेबल, ऑफ फ्रॉम द थर्ड टेबल, बुक्स फ्रॉम द लास्ट टेबल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? A bunch of books. Bunch गुच्छा, है ना। A bunch of grapes. A bunch of flowers. ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यस, हमने अब यहां से लिया 2 sacks यानी बोरियां ऑफ। अभी बोरियां किसकी होती है? शुगर की बोरियां होती है, फ्लोर यानी आटे की बोरियां होती है, सॉल्ट यानी नमक की बोरियां होती है, राइस यानी चावल की बोरियां होती है। तो हम सेंटेंस में लिख सकते हैं 2 sacks of sugar, 2 sacks of flour, 2 sacks of rice, और 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 है ना, तो यू कैन ऑल्सो टेक 5। नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, 5 kilograms ऑफ। अभी किलोग्राम में क्या क्या होता है? राइस होती है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं 5 kilograms of rice, 5 kilograms of sugar, 5 kilograms of salt. Like this you can make as many as sentences you can. आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बट इट शुड बी मीनिंगफुल सेंटेंस। किसके साथ में क्या जोड़ना है आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, 2 liters of milk, 2 liters of oil। अब आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि मिल्क और ऑयल को हम लीटर्स में नापते हैं। तो आप 2 ले सकते हो, यू कैन टेक 5 liters of milk, 5 liters of oil. Okay, चलिए नेक्स्ट वन, 5 meters of cloth। अब कपड़ा जो है हम मीटर्स में नापते हैं। 5 meters of cloth, 2 meters of ribbon, you can also tell. Okay, the next one, a lump of butter। जो मक्खन का पूरा एक पैकेट में पूरा देखिए, अंदर देखो तो पूरा ढेर होता है मक्खन का। ½ kg का होता है या 2 kg 1 kg का होता है, लेकिन पूरा एक बंद होता है।
तो वो कहलाता है लंप, अ लंप ऑफ बटर। आई थिंक स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा सेंटेंस किस तरह हमको बनाना है। ओके, बस इतना याद रखना, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल और आपको हर एक टेबल में से एक वर्ड को उठाना है। चारों टेबल में से एक एक वर्ड को उठाकर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।